Very good morning and indulge in your study. No, very good morning. Now, we are here to study the circular motion, the topic of the day. Circular motion, yesterday we have discussed something about circular motion, and the first thing was there was angular displacement. Angular displacement. So, what is angular displacement? Actually, this is the angle traversed by a body की बजाय आप particle कहे, body will be the macroscopic term. Body हटा दीजिए, a particle moving on a circular path. So this is the first thing that we will study uh, on a circular path, and what is the denotion denoted by एंगल को डिनोट किससे करते हैं थीटा को सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड यूनिट will be what rad and dimension no dimension dimensionless and if I'm going to say you that this is a circular path of radius r and this starts moving from a point P, suppose this is the center and it goes, the particle at point P goes to a point, new point P dash in time t. Then its new position will be P dash, and when we meet P dash to O, this will be the another radius. So I can say that this is R also, and the angle traversed by it will be either delta t or theta, whatever you can say. And the distance that traveled here on the curved path will be linear displacement or linear distance. So relationship between angular displacement and linear displacement we are going to have. Suppose I'm going to write it here. Suppose time t is very small, or time t then P and P dash. Hello. हेलो आवाज आ रही मेरी आपको हेलो आवाज आ रही बेटा हेलो आवाज आ रही है
आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आप बताइएगा। हेलो, आ रही है ना? फिर परेशानी है कोई? एक्चुअली आज मैं, हाँ अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। ओके 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 ओके। अब आ रही? ओके। वो परेशानी है एक्चुअली, आज मैं थोड़ा सा, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The next topic, angular velocity, sorry, and its magnitude will be called angular speed. So if you present it in vector, then it will be angular velocity, and if you present it in its magnitude only, then this one will be what? Speed. So if I'm saying, if I'm going to write the definition, what will be? Rate of travel of angular displacement is called what? Angular velocity. हाँ हाँ, हो गया था, इससे आगे शुरू करना है। ठीक है, rate of travel of angular displacement is called angular velocity, and you have written this formula. I have told you that if you put here vector, then this will be velocity. If you write in this way, omega means magnitude only, it will be what? Speed. And you got two more formula yesterday. One was 2 pi by capital T, and another was 2 pi into nu. Now today we are going to find the relationship between angular speed and linear speed. Relationship between linear and angular speed. If I'm saying speed, you can also take it for velocity. मैंने आपको बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना अंतर है कि जब हम वेक्टर के साथ प्रेजेंट करेंगे तो वो वेलोसिटी कहलाएगा, एंड इफ यू टेक ओनली मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर, देन दैट विल बी कॉल्ड स्पीड। अब हम फिर से आते हैं और वही लीनियर सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं। हियर इज द सेंटर O. It starts from point P and will go to a new point P dash in a time interval delta t. The distance that traveled is delta s, the angle that traversed is delta theta, and the radius is r. Then we can say that delta theta is equal to delta s by r. It was earlier discussed by us. Now if we divide above equation by delta t, तो जब आप कहते हैं एबव इक्वेशन, तो इसका मतलब कि आप लेफ्ट और राइट दोनों में क्या कर रहे होते हैं? डिवीजन कर रहे होते हैं। तो जब आप लेफ्ट और राइट दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो फिर कितना हो जाएगा? इधर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, and upon delta t that will be taken here. So it will be omega is equal to delta s by delta t will be what?
आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, ये वेलोसिटी हो जाएगी एंड दिस विल बी v by r, where v is what? Linear speed. So v is equal to r into omega. Okay, so this is the relationship between linear and angular speed. Now we are coming up. आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। अब हम आते हैं एक नई टॉपिक पे जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती थी, कोई बताएगा मुझे? यूनिफॉर्म मोशन इन द चैप्टर नंबर 3 क्या था? डू यू रिमेंबर? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही था ना? और क्या हो सकता है? और कोई डेफिनेशन अगर कोई बताना चाहे? एक तो आप लोगों ने बोल दिया इक्वल डिस्टेंस, है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और किसी को कोई प्रॉपर्टी? व्हाट अबाउट स्पीड इन दिस वन? ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बता दें। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है, बदलती है या नहीं बदलती? बोलिए। नहीं बदलती, इसका मतलब स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कितना होता है? अगर स्पीड नहीं बदलेगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो फिर जीरो। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये होता है यूनिफॉर्म, और ये मोशन लिनियर होता है ना, यूनिफॉर्म लिनियर मोशन का। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अगर एक पार्टिकल आपका सर्कल पे चल रहा है, मान लीजिए कि ये सेंटर है इसका O, और ये यहाँ से चलना शुरू करता है पार्टिकल। तो जब ये ऊपर चलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इसके बढ़ने की या इसके चलने की जो स्पीड होती है, स्पीड दैट विल बी कॉल्ड एंगुलर स्पीड। तो जो एंगुलर स्पीड है, अगर वो कांस्टेंट है, तो हम ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखोगे? इक्वल एंगल या इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तब वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल ट्रैवर्स का मतलब घूम जाता है। When a particle traverses equal angle in equal interval of time, the motion will be called uniform circular motion. ओके, नाउ ओमेगा के बारे में क्या ख्याल है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और आपने कहा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रैवल होना चाहिए। इसका मतलब ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
अब एक बात मैं आपको और बताऊं, आप जब इस v की बात करते हो तो ये तो मैंने स्केलरली प्रेजेंट किया। मैंने कहा था स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क इतना है कि जो स्पीड होगा वो अमाउंट होगा और जो वेलोसिटी होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू r इंटू वेक्टर ओमेगा। Okay, let me write it here. Vector v is equal to r into vector omega. अब इस v का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास if we take linear velocity, its direction will be tangential to the circumference. ओके, यानी अगर आप पॉइंट P पर वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो वो इधर होगा। अगर वो P डैश पे पहुंच गया सपोज, तो फिर उसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा। इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज वेलोसिटी 1, then this one will be v1 and this one will be v2. What do you think? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हुई क्या स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका अमाउंट होना चाहिए। चलो अमाउंट जो होगा वो तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, या फिर कैपिटल आर आप लिख लो। आर कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, इसलिए v तो कांस्टेंट होगा। यानी जो स्पीड की वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट होगी। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है क्या? क्या p का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, क्या वही डायरेक्शन p डैश पर भी है? नहीं है। क्या वही डायरेक्शन यहाँ पे p डबल डैश पे भी होगा? नहीं होगा, बल्कि डायरेक्शन कुछ दूसरा होगा। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से डायरेक्शन इज नॉट सेम। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होता है तो फिर आपका वेक्टर भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब कि वेक्टर बदल रहा होगा। और अगर वेलोसिटी बदल रही होगी तो बदलती हुई वेलोसिटी से एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, उस पे जा रहे हैं। एंड वी डिस्कस इट हियर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। Let us understand the meaning of centripetal. Centri means center and petal means seeking. An acceleration which is always seeking the direction of center will be called what? Centripetal acceleration. The acceleration which is always directing towards the center is centripetal acceleration. So we should write here the definition: in uniform circular motion, the velocity of particle changes
every moment. So the particle experiences an acceleration that is having direction always towards center. This acceleration is called centripetal acceleration. Okay, so this is all about centripetal acceleration. Means when a particle performing uniform circular motion, the velocity changes, and this change in velocity will cause an acceleration which have direction always towards the center, and that's why that will be called centripetal acceleration. So let us have the visualization of this concept here. If this is center, this is the particle, then this particle will experience a acceleration towards the center. If the particle will be here at this point, then there must be an acceleration experienced by it that will be in this direction. So this acceleration everywhere is towards center. सो कहने को हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन कांस्टेंट होता है. किसी से भी मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा सेंट्रीपेटल डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, तो वो बोल देगा सेंटर की तरफ. तो वन वर्ड आंसर है, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्शन तो हमेशा सेम ही रहने वाला है. लेकिन आप देखिए ये वाला माइनस आई पे होगा, तो ये वाला प्लस आई पे होगा, ये वाला माइनस जे पे होगा, तो ये वाला प्लस जे पे होगा. यानी डायरेक्शन बदलता है. बट जो कॉमन सेंटेंस है सबका वो ये है कि कॉमन वर्ड है टूवर्ड सेंटर. अब हम आते हैं एक्सप्रेशन पे, फार्मूला डेरिवेशन पे. एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई. एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा मेरे से. ठीक है, तो अब हम फिर से वही वाला फिगर लेंगे. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाएंगे और इस पर थोड़ा सा चेंज लेंगे हम लोग. सेंटर जरूर दिखाएंगे हम. सॉरी, दिस इज द सेंटर ओ. लेकिन इस बार जो मोशन की शुरुआत है वो सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय थोड़ा सा एंगल पे लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए कि असल में क्या हो रहा है. सो दिस इज योर पार्टिकल एट पॉइंट पी. दिस इज एट टी इज इक्वल टू टी. मतलब समय की जब मतलब आपने मेजर किया या देखना शुरू किया सो समय टी था. Now, this is moving in uniform circular motion, and after time t dash means t plus delta t, new time is t dash, and its value is what?
t plus delta t. It travels the distance delta s from here to here, travels the angle delta theta. Look at the velocity. At this point, the velocity will be tangential. So this will be the direction. बाकी सारी चीज़ें मिटा दें, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हम सिर्फ वेलोसिटीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, और टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा ये। दिस वन विल बी वेक्टर v1। लेट मी राइट, मैं इसे p1 लिख रहा हूँ। जब वो p2 पर जाता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है, तो फिर वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल होगी, एंड दैट इज v2। okay, because I have told you that the linear velocity will have direction tangential to the surface. Now if I'm going to draw these two velocities separately, this is the direction of v1. Let me write it here. This is v1 direction, and this is the direction of v2. Okay, so this is v2, vector v2. Now if we have to find vector v1 and vector v2, तो हमें velocity के changes चाहिए होंगे। velocity के changes के लिए let me show it with different color, red color. Vector will be presenting here delta v vector, and let me write it with A, B and C. If this angle is theta, this angle will also be theta, delta theta. How? You can use my theorem. If the angle between two lines are given, then find the perpendicular lines on them. उनके बीच का भी उतना ही एंगल बनेगा। तो अब ये देखिए आप, जो टेंजेंट होता है वो तो 90 डिग्री होता है ना भाई रेडियस पे, तो ये इस पर 90 डिग्री हो गया, और ये v2 वाली लाइन इस पर हो गया, OP2 पर परपेंडिकुलर हो गया। इसलिए v1 और v2 के बीच का भी एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब आप के पास कुछ भी नहीं है ज़्यादा डेरिवेशन करने को। अब बस आप ये करिए, ट्रायंगल ले लीजिए। नाउ वी टेक टू ट्रायंगल्स, the first one is OP1 P2 and the second one is triangle ABC. Let me clear you something. अगर मैं OP1 की वैल्यू लिखूं तो कितना लिखूंगा, R है ना। OP2 की वैल्यू भी कितनी होगी, R, यानी इस ट्रायंगल OP1 P2 के दो साइड R होंगे जो कि इक्वल हैं। इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। यस और नो? ओके, अब आप यहां पे देखिए, आप ये बोलते हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका वेक्टर v1 है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो AC की लंबाई होगी, है ना। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 होगा वही आपके AB की लंबाई होगी। और आपको पता है कि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये बात मैं आपको पहले बोल चुका इधर,
मैंने क्या बोला यहाँ पर कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा कांस्टेंट होता है, यानी स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिर्फ डायरेक्शन सेम नहीं होता या डायरेक्शन वैरी करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी बदल रहा है। ओके, तो वेलोसिटी तो बदल रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदल रहा, इसलिए AC की लंबाई और AB की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो मेरे पास पेयर ऑफ अ ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल डेल्टा थीटा है, दूसरे एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका भी तो आपस में इक्वल होगा ना भाई, क्योंकि इसके भी दोनों साइड इक्वल होगा। सो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका जो इक्वल साइड है उसके बीच का एंगल सेम है, तो दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। नाउ वी टेक टू ट्रायंगल्स विच आर इक्वल। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों इक्वल हैं, सिमिलर बोलते हैं इक्वल की बजाय। आर सिमिलर ट्रायंगल्स। डू यू रिमेंबर कि सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशंस होती है सिमिलरिटी की, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देन बाय BPT, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके अनुसार अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनेट होते हैं। यानी आप ये लिख सकते हो थीटा के सामने का ABC का साइड क्या रहा, BC। ये देखिए मैंने डेल्टा थीटा के सामने का मैंने लिया हुआ, तो यहाँ भी डेल्टा थीटा के सामने का लूंगा मैं। डेल्टा थीटा के सामने की साइड कितनी होगी, P1 P2 हो गया। डेल्टा थीटा का सामने का ABC का साइड अपॉन डेल्टा थीटा के सामने का OP1 P2 का साइड इज इक्वल टू AC, यानी एक साइड अपॉन इसकी एक साइड OP2। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताए। Anyone, if you are having any doubt? नहीं ना? Okay, so I'm going to say that this is equation 1 और मैं इस इक्वेशन में सबकी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। BC की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, डेल्टा V, क्योंकि जो वेक्टर डेल्टा V है वो तो वेक्टर को दिखाएगा। मैंने सिर्फ BC यानी लेंथ लिखा है, तो लेंथ उसका अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय P1 P2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, डेल्टा S, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा P1 से P2 तक जाने में, और वो मैं आपको बोला था कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, डेल्टा S इज इक्वल टू AC। AC कितना है मेरा, लंबाई की बात करें तो V, और OP2 कितना होगा, R। वैल्यूज में किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डेल्टा V is equal to V by R into delta S. Say this is equation number 2. Now divide equation 2 by delta T. What will be? Delta V divided by delta T is equal to V by R into delta S by delta T. What do you think? Delta S by delta T will be what? What can you write in? Okay, and rate of change, delta V by delta T is what? Rate of change of speed or velocity. Okay, so this will be the acceleration is equal to V by R into this one will be what? V. So A is equal to what? V square by R. This is the acceleration. ये तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास,
लेकिन आपको बताना ये है कि ये फार्मूला सच में क्या होता है, सेंटर की तरफ काम करता है ये एक्सेलरेशन या नहीं। आप देखिए, आपने अगर v1 v2 दिखाया तो ये जो डायरेक्शन है C से B की तरफ, वही डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ है ना भाई, है ना। अगर आप इन दोनों के बीच का P1 P2 के बीच का डायरेक्शन लें तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वेक्टर delta V has the direction towards center. So, acceleration that is equal to delta V by delta T will have direction towards center. So this acceleration is centripetal acceleration. So centripetal acceleration will have direction towards the center. So this acceleration is centripetal acceleration. Any doubt? अब आप एक पक्की चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई पार्टिकल आपका क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसके अंदर निश्चित रूप से क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर को होगा, सेंटर की तरफ होगा, और इसे हम कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बताऊं कि आप ये कहते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब मैं इसका उल्टा बोलने जा रहा हूं, वो उल्टा मैं ये बोलने जा रहा हूं, इफ देयर इज अ centripetal acceleration, if there is a centripetal acceleration on a particle, the particle must go in uniform circular motion. यानी किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन पे जाने के लिए जो कंपल्सरली चीज होनी चाहिए वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक दूसरी नोट में लिख दूं, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आया आपका, आप जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, डू द स्क्वायर ऑफ दिस वन, इट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू व्हाट, r omega square also. So this is another equation, another formula for centripetal acceleration. Now next topic is centripetal force. कोई बात नहीं बेटा, जब हम वहाँ भेज देंगे ना तो वहाँ से ले लेना है, क्योंकि टाइम आपका हो रहा है। आई एम हैविंग ओनली 9 मिनट और ये चैप्टर मुझे फिनिश करना है।
ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, आई थिंक यू रिमेंबर इन 9th क्लास, कि जब कभी भी एफ का फार्मूला लिखा जाता है तो आप लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, ये लिखते हैं ना, है ना, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो अगर कहीं पे ए है और दुनिया में हर चीज़ के पास एम होता है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो दुनिया में हो और उसके पास एम ना हो, मासलेस चीज़ का कोई भी हाइपोथेसिस एग्जिस्ट नहीं करता। वो अलग बात है कि बाद में किसी और कारण से जीरो हो जाए, जीरो हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो उसका एम जीरो नहीं होगा। तो अगर किसी के पास ए है तो श्योरली उसके पास एफ होगा, है ना। तो अभी हमने कहा कि एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया जिसका सेंटर की तरफ डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो किसी फोर्स के चलते हुआ होगा, और वो फोर्स जो होगा उसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा, इसलिए हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। व्हेन a particle performs uniform circular motion it experiences a force always directing towards its center. This force will be centripetal force. So centripetal force Fc is equal to mass of the particle into AC, centripetal acceleration. So Fc is equal to mass into acceleration का, centripetal acceleration का क्या फार्मूला आ गया था मेरे पास, v स्क्वायर बाई आर। सो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एफ सी। ओके, सो ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला हो गया। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आप जानते हैं, यानी एक और फॉर्मेट बन सकता है इसके फार्मूले का, m और आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज अनदर फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास वेक्टर एफ है, सी एंड वेक्टर वी के बीच का एंगल कितना है, कितना है भाई, एफ एंड वी के बीच का। चलिए देखते हैं। अगर ये पार्टिकल है और आपने कहा कि इधर का एक्सेलरेशन होता है तो इधर का ही सेंटर होगा। मैं फिगर बना दूं, ये सर्कल है और इस सर्कल पे ये सेंटर है। एक्सेलरेशन किधर का, सेंट्रीपेटल फोर्स किधर को काम करेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, टुवर्ड्स सेंटर। सो ये हो गया एफ सी। वी किधर काम करेगा, वी किधर काम करेगा, व्हाट यू हैव रिटन, वी के बारे में क्या ख्याल है आपका। मैंने कहीं पे तो लिखा था, कहाँ लिखा था, जहाँ पे हमने ये लिखा था कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती, ये लिखा है मैंने, देखिए, इट्स डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल। किसकी डायरेक्शन,
लीनियर वेलोसिटी के, यानी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट होगा, ऐसे टच करता हुआ। टेंजेंट का मतलब टच करता हुआ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो इसको यहाँ से उठा के वहाँ ले चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत है। इस जगह पे पेस्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। क्या आंसर रहा भाई? कितना एंगल हो जाएगा हमारा? सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जब कभी किसी भी मोशन में अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगा तो वो मोशन सर्कुलर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, 12th क्लास में इसका एप्लीकेशन होगा। क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप दौड़ना शुरू कर रहे हो, सपोज आप ऐसे दौड़ना शुरू कर रहे हो, आपका एक फ्रेंड आपको लगातार 90 डिग्री पे धक्का दिए जा रहा है, तो आपका रास्ता कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। एवरी टाइम इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन यू इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तब आपका रास्ता कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। आखिरी टॉपिक जो है नहीं आपके सिलेबस में, पर मुझे ऐसा लगता है कि बता देना ज़रूरी है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, पर सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंटर से बाहर की तरफ। तो मैं बस इसे आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा कि जब कभी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक फोर्स आउटसाइड लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आपने कभी मौत का कुआं वाला स्टंट देखा है किसी सर्कस में? उसमें क्या होता है, एक बाइकर होता है, वो कुएं की दीवार पर क्या करता है, अपने बाइक को दौड़ाता है ना, और हमें लगता है कि यार कितना गजब का स्टंट है ना, पर असल में वो स्टंट है तो स्टंट ठीक है, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स की एक थियरी काम करती है, और वो है सेंट्रीफ्यूगल थियरी। सेंट्रीफ्यूगल थियरी के हिसाब से जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन पे जाता है तो उस पर अंदर को एक फोर्स तो लगता है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर एक सर्कमफेरेंस से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दीवार से चिपकाए रखने का काम करता है। सो दिस इज FCF, सेंट्रीफ्यूगल। ये इसको दीवार से चिपकाए रखता है। अब स्टंटमैन का काम क्या होता है? सिर्फ अपने बैलेंस को बनाए रखना। कुछ लोग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं कि ये रिएक्शन है, किसका? सेंट्रीपेटल फोर्स का रिएक्शन है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स के, और जो वैल्यू होगी वो mv²/r होगी। तो ये जिन लोगों के घर पे मम्मी लोग मक्खन से घी निकालती हैं, या जो लोग वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टरर, क्या बोला जाता है उसको, मथनी से क्या करते हैं, घुमा घुमा के मक्खन में से घी निकालते हैं, या और कुछ ऐसा होता है दही में से मक्खन निकालते हैं। तो उसमें यही होता है कि चूंकि मक्खन हल्का होता है, उसका m कम होगा, इसलिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते दूर नहीं जाएगा बल्कि यहीं सेंटर के पास ही रह जाएगा। तो जो आपका क्रीम यानी मक्खन होता है वो मथनी के पास होता है, और जो बाकी मट्ठा होता है जिसको बटर वाटर क्या बोलते हैं, कुछ है,
हाँ बटर मिल्क बोलते हैं, वो किनारे चला जाएगा, फिर आप यहाँ से क्रीम ले सकते हैं, and that is due to centrifugal force. So that's all for the day. चैप्टर फिनिश हुआ आपका, ठीक है।